colloidal state or colloid is a kind of actually heterogeneous mixture. In junior classes, you have done about this, that all different type of matter is basically classified into two types, and these two types of matter, can you name that? Matter can be classified into two types: pure substances and mixtures. ठीक है? And if we discuss about mixtures, तो mixtures जो हैं they are further classified into two types: homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है? तो out of these two mixtures, homogeneous mixtures of two or more substances are called solutions, whereas heterogeneous mixtures are further classified into two types: colloids and suspensions. ठीक है? तो a colloid is a heterogeneous mixture of two or more substances, it may be. तो it appears to be homogeneous otherwise. ये एक बहुत बड़ा difference है colloids and suspension में, कि colloidal mixtures are heterogeneous otherwise. मतलब अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो heterogeneous होते हैं, मीन्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है, बट they appear to be homogeneous always because the particles remain you can say suspended throughout the mixture. Particles जो है वो throughout bulk में suspended रहते हैं, they never settle down. जैसे आप sand को water में mix करते हो तो sand settles down after some time. तो ये एक ऐसा heterogeneous mixture है जिसमें particle settle हो जाएंगे bottom पे. But colloids, for example muddy water, mud है जिसको हम कहते हैं ना ऐसा एक दलदल सा जो बन जाता है, उस तरह का जो muddy water है that is a colloidal mixture. उसमें mud के जो fine particles हैं वो कभी भी settle नहीं होते, rather they remain suspended throughout. तो colloidal mixture is colloid is a kind of heterogeneous mixture in which particles remain suspended throughout. और पार्टिकल साइज जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये डिफर करता है होमोजेनियस जिनको हम सॉल्यूशंस कहते हैं और दूसरा हेटेरोजेनियस जिसको हम सस्पेंशंस कहते हैं. पार्टिकल साइज इज इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइज की वजह से ही सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कोलॉइड की ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन से वेरी करती हैं. ट्रू सॉल्यूशंस जिनको होमोजेनियस मिक्सचर्स हम कहते हैं, दे हैव पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, इससे भी छोटे होंगे 1 नैनोमीटर से. और इतने छोटे पार्टिकल जो हैं दे कैन पास थ्रू फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मीडियम, लाइक फिल्टर पेपर से भी पास थ्रू हो जाते हैं, इवन जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एसपीएम उनसे भी पास थ्रू हो जाते हैं. whereas particles of colloids can pass through normal filter paper but they do not pass through semi permeable membrane. So semi permeable membrane can be used to filter colloidal mixtures. Clear? और suspensions जो है उनके particle size जो heterogeneous mixture दो टाइप की मैंने आपको बताया, colloids and suspension. तो those mixtures in which particle size is greater than this range 1000 nanometer से above particle size जो होगा, those mixtures are known as suspensions. And suspensions के particles को आप easily filter out कर लेते हो because they are larger than the pore size of normal filter paper. तो वो normal filter paper से भी filter out हो जाएंगे. Colloids can be filtered out only by SPM, and true solutions which have particle size lesser than 1 nanometer cannot be filtered out using any type of membrane. Clear? ये तीनों में एक बहुत बड़ा difference है on the basis of filtration. और stability अगर हम देखें तो true solutions which are homogeneous in nature, they are you can say very stable. बहुत life long होती है इनके, आप जितना time तक solutions को रखो, they never particles do not settle down at the bottom. Suspensions के particles तो instantly settle down हो जाते हैं because they are quite larger, to gravity से अपने आप settle हो जाते हैं. Particle size of colloid is also larger than true solution,
बट स्टिल कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल बिकॉज इनमें पार्टिकल्स थ्रू आउट सस्पेंडेड रहेंगे. रीजन क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक सिमिलर टाइप का चार्ज रहता है और वो हर टाइम एक मोशन में रहते हैं जिसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं. तो दीज कोलिजन्स result in you can say continuous motion of particles and they never settle down. तो चैप्टर में आगे आएगा आपको why colloidal particles are stable or colloidal particles never settle down. इसका रीजन क्या है? तो that will be under properties of colloidal mixture. अभी आपको मैं डिफरेंस बता रही हूँ. homogeneous mixtures which are called solutions, जो आपने चैप्टर 2 कर लिया है solutions में, particle size is lesser than 1 nanometer. Particles are always stable, they never settle down. They cannot be filtered out by any membrane. कोई किसी भी तरह की आप उसे filter नहीं कर सकते हो. And they never show Tyndall effect. Whereas colloids का जो size range है वो light की wave को easily scatter कर सकता है. तो that is why colloids show permanent Tyndall effect. Suspensions का particle size larger है but सस्पेंशन खुद ही स्टेबल नहीं है इसलिए वो कोलॉइडल टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल मिक्सचर्स. एंड एक्चुअली कोलॉइडल मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स, हम जैसे हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करते हैं तो लार्जर वन इज कॉल्ड एज सोल्यूट, स्मॉलर वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सोल्यूट. तो यहाँ पे आपने सोल्यूट टर्म यूज नहीं करना. हियर फॉर सोल्यूट वी आर यूजिंग बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल. So that's why we are not using the term solute. Rather we say dispersed phase. Solute की जगह हम यहाँ पे use करते हैं term dispersed phase. मतलब जो substance पूरी तरह से disperse हुआ है medium के अंदर किसी large quantity वाले substance के अंदर, चाहे वो water है या whatever, तो that is known as dispersed phase. और जो हमारा solvent है, मतलब जो larger component है, that is known as डिस्पर्जन मीडियम. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. जो लार्जर कंपोनेंट है मींस जिसको हम सॉल्यूशंस के केस में सॉल्वेंट कहते हैं, दैट सॉल्वेंट इज रेफर्ड टू बी as dispersion medium in case of colloids. We never use these terms solute and solvent. Rather we use these terms dispersed phase for solute and dispersion medium for solvent. यहाँ आप कंपोनेंट लिख सकते हो, स्मॉलर होता है ये, मतलब कम क्वांटिटी में होगा, एंड डिस्पर्जन मीडियम इज इन लार्जर अमाउंट. ठीक है. एंड डिस्पर्जन मीडियम हैज एबिलिटी टू गेट these particles dispersed throughout. Next is types of colloidal mixtures. Just wait. Colloids are of various types and they can be classified on the basis of three main criteria. Or in criteria ke base, it's also very important. Sometimes only the names of different colloids can be asked on the basis of a particular criteria. So first है physical state of dispersed phase and dispersion medium. Physical state, you know, either it may be solid, liquid or gas. तो उन फिजिकल स्टेट डिस्पर्स्ड फेज किस फॉर्म में है और डिस्पर्जन मीडियम किस फॉर्म में. जैसे हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की फॉर्म पे 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. हियर आल्सो 8 टाइप ऑफ colloids exist on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium. Second criteria है nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. मतलब जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसी है, मींस वो अच्छे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर उसकी सॉल्युबिलिटी है डिस्पर्स्ड फेज की तो सॉल्युबिलिटी टर्म वैसे अदरवाइज हम नहीं यूज करते. इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर है सॉल्वेंट की तरफ तो वो इजीली बन जाएंगे और बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे. एंड दूसरी तरफ वो हो सकते हैं जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो इंटरैक्शन है वो कम होती. तो इंटरैक्शन के बेस पे 2 टाइप के हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायो होता है एक तरह का सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज होता है, दैट विल डिस्कस लेटर. थर्ड कैटेगरी जो क्राइटेरिया है, थर्ड टाइप जिसके बेस पे कोलॉइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. पार्टिकल जो है वो एक्चुअली किस साइज बेसिकली हम यहाँ कंसिडर करते हैं उनका,
कि जो इतने लार्ज हैं साइज पे कि वो सिंगल पार्टिकल ही उस रेंज में आ जाता है 1 नैनोमीटर 2000, या फिर वो आपस में एग्रीगेट होके इस तरह का साइज बना लेते हैं, तो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट colloids are classified into 3 types. तो फर्स्ट वाली कैटेगरी के बेस पे 8 टाइप के colloids हैं. सेकंड कैटेगरी के बेस पे, सेकंड क्राइटेरिया के बेस पे there are 2 types of colloids, and on the basis of third criteria type of particles the colloids are classified into 3 types. ठीक है, तो first we'll discuss from this table types of colloidal system on the basis of physical state, whether they are solid, liquid or gas, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दोनों का फिजिकल स्टेट कंसीडर करेंगे. तो स्टार्टिंग विद सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम. मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है. सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ कोलॉइड इज नोन एज सॉलिड सॉल. ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म्स क्लियर रखो. सॉल टर्म हम यूज करते हैं जनरली जब सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होता है, मतलब सॉलिड सॉल के लिए बेसिकली दोनों ही चीजें यहाँ पर सॉलिड होंगी. और एरोजोल टर्म हम तब यूज करते हैं व्हेन गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम. क्लियर? तो एरोजोल आपको जहां पे भी मिलेंगे दैट इज फॉर अगर गैस एक डिस्पर्जन मीडियम है, और जनरली एयर के लिए जो भी एग्जांपल्स आप देखोगे एरोजोल की फॉर्म में उनको हम टर्म यूज करते हैं. तो थोड़ा बहुत टर्म्स पे ध्यान रखोगे तो इजीली क्लियर हो जाएंगे आपको. सॉल वर्ड आपको जहां पे भी मिल रहा है दैट इज फॉर समवेयर सॉलिड इज इन्वॉल्व. सॉलिड सॉल दोनों सॉलिड होंगे. ओनली सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, और एरोजॉल वगैरह जो है वो आपको एयर से रिलेटेड करने. ठीक है, और ये एक सॉलिड सॉल यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज नॉट सॉलिड सॉल, दिस इज सॉलिड फोम है. ये यहाँ बाय मिस्टेक प्रिंटिंग हुई हुई है. दिस इज सॉलिड फोम. So solid in solid is known as solid sol. Example colored gemstones, colored glasses जितने भी हैं they are examples of. जैसे आपको कभी किसी gemstone के अंदर से अलग अलग फिगर या अलग अलग कलर्स नजर आते तो that is because different type of solids are dispersed in a particular solid medium to form a kind of gemstone or colored glass. Solid dispersed in liquid मतलब हमने यहाँ first 3 solid लिए हैं and here we are changing the physical state. Sanjana and Muskan are facing problem in joining. They are trying but bar enter kar rahi hain. And solid dispersed in liquid is called sol. और इसके एग्जाम्पल सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड एक आप स्टार्ट सॉल 9th क्लास में हम बना चुके थे. अभी भी आपको सिलेबस में है. प्रैक्टिकली ये फाइल में आपने नोट करना है, अदरवाइज हम लोग लैब में बना के दिखाते हैं. स्टार्च का सॉल्यूशन बनाना वाटर में बाय हीटिंग, तो इट इज नोन एज स्टार्च सॉल. तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो. अदरवाइज पेंट्स, सेल्यूलर फ्लूइड जिनको हम सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सॉल. इवन जो हमारा ब्लड है वो भी सॉल है. सॉलिड सेल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड प्लाज्मा. Then solid in gaseous medium या solids dispersed in air is known as aerosol. Example हैं जितने भी smoke particles हैं या solid pollutants हैं, unburned carbon हो गया, dust particles हो गए जो air में dispersed रहते हैं. तो smoke in air, dust in air, all these are examples of aerosol. Even ये जो aerosol और भी कई टाइप के हैं, जैसे वो solid के अंदर नहीं आएंगे, liquid aerosol we'll discuss about that. लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड फॉर्म्स जेल. एक लिक्विड सॉल्यूट कह सकते हो आप जो सॉलिड लार्ज जो मतलब क्वांटिटी में है दैट इज सॉलिड, एंड वी यूज द टर्म जेल फॉर दिस. और जितनी भी डेली लाइफ में हम बटर, चीज, जेलीज, कस्टर्ड के ऊपर भी जो जेली हम लोग यूज करते हैं फॉर लाइक एडिबल अदरवाइज, तो these all are example of जेल. इवन शेविंग जेल वगैरह भी जितनी भी जेल फॉर्म में आप चीजें देख रहे हो
these are formed by mixing liquid in solid. मतलब ज्यादा अमाउंट में सॉलिड रहेगा, लेसर अमाउंट में उसमें लिक्विड होता है. आप कभी भी चीज या बटर को प्रेस करके देखो, बटर तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है प्रेस करने में, चीज कैन बी इजीली प्रेस्ड. पनीर जो होता है उसको आप प्रेस करो तो उसमें से हमेशा थोड़ा वाटर बाहर आता है. दैट इज बिकॉज चीज इज अदरवाइज सॉलिड फैट या सॉलिड प्रोटीन आप कह सकते हो, और उसके अंदर वाटर डिस्पर्स हुआ हुआ है. Liquids, when dispersed in liquids, they are called emulsions. Emulsions के example milk है, creams, जितनी भी face cream आप use करते हो, moisturizers, face creams, cold creams, all these are examples of emulsions. Even certain paints are also in emulsion form. आपने कभी एक आर्ट देखी होगी, नेरोलिक emulsions, इस तरह के जितने भी पेंट्स दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं, आपको सॉल्व फॉर्म में भी होंगे, emulsions की फॉर्म में भी होंगे. Liquids dispersed in gas, aerosol. Again, gas जब भी dispersion medium है air, the type of colloid is known as aerosol. Examples: fog, mist, cloud, insecticide spray. जितने भी farmers ये spray करते हैं ना fields में, pesticides का, insecticide का, या आप लोग भी घर में भी कोई insecticide use कर रहे हो, they all form a kind of aerosol. ठीक है. इवन जो रेफ्रिजरेटर्स में से भी CFCs रिलीज होती हैं, ये भी एयर में एक तरह का एरोजोल बना देती हैं. एंड दीज CFCs आर एक्चुअली नॉट वेरी वेरी स्टेबल दे आर, और वो एयर में कंज्यूम भी नहीं होते हैं, रादर दे रीच इन अपर एटमॉस्फेयर एंड देयर दे कॉज हार्म टू ओजोन लेयर. तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब परफ्यूम भी इवन जब आप स्प्रे करते हो एयर में, इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ एरोजोल, लिक्विड एरोजोल. Then gas dispersed in solid is known as solid foam. Solid foam की जो example है, that are clouds, pumic stone, foam rubber. फोम आपने जो जनरली देखी है, रबर जो देखा, रबर नॉर्मली जो नेचुरल मटेरियल है या आर्टिफिशियल रबर है, ऑल दीज आर they have dispersed air in a particular solid state, तभी वो easily compress हो जाते हैं. तो ये इस तरह के, otherwise they are solid but some amount of air is dispersed in the pores of foam or rubber. ठीक है. pumic stone एक तरह का naturally occurring mineral है and बहुत light weight का होता है, अगर कभी आपने देखा, क्योंकि इसके अंदर air trapped रहती है, and it's used for क्लीनिंग स्किन. जो स्किन है हमारी उसको क्लीन करने में यूज करते हैं. प्यूमिक स्टोन के छोटे छोटे पीसेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं. ग्रे कलर का एक स्टोन टाइप स्ट्रक्चर होता है, बट इट इज क्वाइट लाइटर इन वेट बिकॉज ऑफ ट्रैप्ड एयर. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फोम. लास्ट है फोम, व्हेन गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम. ठीक है. एयर या कोई और गैस अगर लिक्विड में डिस्पर्स हो गई है तो उसको हम लिक्विड फोम या नॉर्मली फोम कहते हैं. जैसे सोप सॉल्यूशन की फोम है, एंड लादर जिसको हम बोलते हैं, झाग बनना, फ्रोथ, फ्लोटेशन में जो फ्रोथ बनता है, दैट इज आल्सो एयर इज डिस्पर्स्ड इन ऑयल. विप्ड क्रीम, क्रीम को बहुत ज्यादा विप जब करते हैं केक वगैरह बनाने के लिए, उसमें भी एयर डिस्पर्स हो जाती है. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स. तो दीज, can anyone tell why there are only 8 types of colloid? Gas in gas is missing. जैसे solutions में हमने 9 types किए थे, तो उसमें gas in gas solution भी था, but here gas in gas colloid is missing. Can anyone tell what is the reason why we don't have gas in gas colloidal mixture? वो homogeneous हो जाना. Yes बेटा. मैम फिर homogeneous mixture. Yeah, very good. Gases always mix to form a homogeneous mixture. Gases एक दूसरे के अंदर इतनी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं क्योंकि इंटरपार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत कम है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी लेस. तो गैसेस ऑलवेज मिक्स होमोजेनेटिकली, तो दे ऑलवेज फॉर्म अ काइंड ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. तो किसी भी दो या दो से ज्यादा गैसेस का जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, कोलॉइड्स की कैटेगरी में नहीं. So that's why we have only 8 kind of colloids on the basis of physical state. Next, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Lyophilic and lyophobic solid.
तो यहाँ पर कोलॉइड्स के जो दो टाइप्स हैं, लायोफिलिक, यहाँ आप देखो लायो जो वर्ड है इट मीन्स, इस टर्म का मीनिंग है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, एंड फोबिक का मतलब होता है रिपल्शन टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। तो लायोफोबिक मीन्स सॉल्वेंट की तरफ रिपल्शन है, इतना इंटरेक्शन नहीं है, एंड लायोफिलिक मीन्स क्वाइट गुड अट्रैक्शन टुवर्ड्स सॉल्वेंट। तो बिकॉज ये इंटरेक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन है, तो दो ही कैटेगरी पॉसिबल है, या तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर कम होगा, या रिपल्शन टाइप्स, मतलब आप कह सकते हो कि नो इंटरेक्शन एंड वन साइड इट इज इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर इज देयर। तो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन अगर है, देन दीज काइंड ऑफ कोलॉइड्स आर कॉल्ड लायोफिलिक, मींस लिक्विड लविंग और यू कैन से सॉल्वेंट लविंग, इनको कोलॉइड्स भी कहते हैं। एंड लायोफोबिक मींस लिक्विड हेटिंग और सॉल्वेंट हेटिंग कोलॉइड्स। ओके, तो ये दोनों भी, इनका भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। समटाइम एक्चुअली आगे जो चैप्टर है वो उसमें काफी बार ये टर्म्स यूज होंगी, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। सबसे पहले लायोफिलिक कोलॉइड का मतलब है अगर डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसके अंदर होती है, एंड व्हेन वी मिक्स dispersed phase in dispersion medium, then they easily mix together to form instant colloidal mixture। मतलब इनको बनाना इतना easy है कि आपने सिर्फ dispersed phase को dispersion medium के साथ mix करना है। जैसे आप starch, जितने भी actually organic molecules हैं, gum, gelatin, starch, rubber, they always form a kind of lyophilic colloids because these solutions have very strong इंटरैक्शन विद वाटर और अदर सॉल्वेंट। स्टार्च का सॉल्व हम जस्ट हीट करके स्टार्च को वाटर के साथ बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं यूज होता यहाँ पे। जो आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर कोलॉइड्स, तो वो मेथड जनरली लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने में यूज होते हैं, बिकॉज लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट इजी टू प्रिपेयर जस्ट बाय मिक्सिंग। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लायोफिलिक colloids can be easily prepared by direct methods, or you can say by direct mixing these dispersed phase like gum, gelatin, starch, rubber with a suitable liquid। कोई भी solvent जिसके अंदर भी आपको बनाना है। और एक चीज और बेटा, जो solvent हम यूज कर रहे हैं उसके बेस पे भी colloids के names अलग अलग हैं। अगर हम water यूज करते हैं solvent, तो हम उसको बोलते हैं एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल। इफ वी आर यूजिंग अल्कोहल एज डिस्पर्जन मीडियम, then those colloids are known as alcohol, ठीक है। और अगर एयर डिस्पर्जन मीडियम होता है तो आपको मैंने अभी बताया कि एरोजोल टर्म इज यूज्ड, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्वासॉल मींस वाटर के अंदर बनाया हुआ है, और चाहे हाइड्रोजोल है वो भी वाटर में है। एल्कोहल का मतलब है अल्कोहल में बना है। और इसके बाद एक मतलब ये जो सॉल है ये इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि आप जिन मेथड से, नॉर्मल जो मेथड क्या होता है कोलॉइडल मिक्सचर में, अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई सॉल्ट या एसिड या बेस कुछ डाल दें, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो अलग हो जाती है डिस्पर्जन मीडियम से। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, ब्लड जब आपकी स्किन पे कहीं पे कट लगता है, तो एक बार जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, आफ्टर सम टाइम ब्लड क्लॉट्स, वो तो ब्लड की अपनी एक टेंडेंसी है, जो प्लेटलेट्स हैं उसके अंदर वो उसको क्लॉट करते हैं। बट अदरवाइज अगर ब्लड उस टाइम पे इतना शार्प कट है कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा, तो एक ये होम रेमेडी है कि हम उस पर फिटकरी लगा देते हैं। फिटकरी आपने नेम सुना होगा ना, पोटैश एलम का कॉमन नेम है। तो पोटैश एलम में क्या होता है एक्चुअली, जो केटायंस हैं, ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल, तो वो उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। तो इसलिए मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट डालने से ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं किसी भी कोलॉइड को। तो लायोफिलिक जो कोलॉइड्स हैं दे आर नॉट इजी टू प्रेसिपिटेट आउट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इनकी जो इंटरेक्शन है डिस्पर्स फेज की डिस्पर्जन मीडियम के साथ वो स्ट्रॉन्गर है। तो दे आर इजी टू प्रिपेयर बट डिफिकल्ट टू प्रेसिपिटेट आउट। और एक बार अगर आपने प्रेसिपिटेट आउट कर दिया तो दोबारा आप मिक्स करके इनको मतलब इजीली बना सकते हो वापस, क्योंकि ये इजीली फिर मिक्स हो जाएंगे। तो दीज आर रिवर्सिबल सॉल्ट। रिवर्सिबल का मतलब है प्रेसिपिटेट आउट करने के बाद फिर से आप उसको उसी सॉल्वेंट पे मिक्स करो तो वो वापस मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दे आर क्वाइट स्टेबल,
they are easy to prepare, they have stronger interaction towards dispersion medium, and they are difficult to precipitate out, but once precipitated out, they can be converted into sol again. That is why they are reversible in nature. अब यहाँ जो ये टर्म कोगुलेटेड है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट आउट ही है. प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन टर्म यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स के लिए. जैसे ब्लड के लिए हम कोगुलेशन वर्ड यूज करते हैं, सेम फॉर एनी कोलॉइड प्रेसिपिटेशन इज आल्सो नोन एज कोगुलेशन. देन नेक्स्ट लायोफोबिक. अब लायोफोबिक मींस सॉल्वेंट की तरफ इंटरेक्शन कम है और ये जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं. ऊपर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बन रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, लाइक मेटल सॉल्ट्स, सिल्वर का सॉल्ट बनता है, गोल्ड का सॉल्ट बनता है, या उनके सल्फाइड्स या उनके ऑक्साइड्स के सॉल्ट्स हैं. तो दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स and they have very little interaction towards solvent or the dispersion medium. Hence, they cannot be prepared by simple mixing. Rather, they need to be prepared by some special methods which are discussed in chapter later. And these salts are readily precipitated out. थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो या इनको हीट कर दो या शेक कर दो, ये इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट सो स्टेबल. क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है तो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. और एक बार प्रेसिपिटेट कर दिया आपने तो उसके बाद ये दोबारा से अगर हम इसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करें तो ये वापस सॉल्ट नहीं बनाएंगे, जो लायोफिलिक सॉल्ट्स बना लेते हैं. तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इररिवर्सिबल. दोबारा इसको फिर स्पेशल मेथड आपको यूज करना पड़ेगा बनाने के लिए. ठीक है, तो ये स्टेबल कम है और इसीलिए इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. एंड वंस प्रेसिपिटेटेड आउट, they cannot be converted back just by mixing in dispersion medium. Again, you have to use those special methods. Hence, they are known as irreversible salts. And to make them stable, they need some stabilizing agents. उसमें कुछ agents ऐसे डालने पड़ते हैं जो उनको stable बनाते हैं, preserve करके अगर रखना है तो, otherwise they are not so stable. ठीक है, तो inorganic salts हैं generally lyophobic salts, organic salts होते हैं generally lyophilic salts. Lyophilic salts greater interaction, lesser interaction. Lyophilic easy to prepare. They are not easy to prepare by simple methods. Some special methods are to be applied. These are reversible and cannot be precipitated out easily. They are irreversible and can be precipitated out easily. Okay? They are more stable than lyophobic. So these 4-5 differences you must know about lyophilic and lyophobic. थर्ड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि किस टाइप के पार्टिकल्स है, जनरली साइज से रिलेटेड है. तो मल्टी मॉलिक्यूलर, इसके बेस पे 3 टाइप्स के कॉलॉइड्स हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड. मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में क्या होता है, कुछ छोटे एटम्स या मतलब जैसे गोल्ड या सिल्वर का हम सॉल्ट बना रहे हैं, तो गोल्ड या सिल्वर के एटम्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते साइज में कि 1000 नैनोमीटर तक की रेंज हो उनकी, मतलब इस साइज से छोटे होते हैं. तो दे जस्ट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज एग्रीगेट मॉलिक्यूल. ठीक है, और वो कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं. तो दीज स्पीशीज आर, जो एग्रीगेट बना है उनका, वो एक्चुअली उसी फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेंगे जब आप उनका सॉल्ट बनाते हो डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर. तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, मेटालिक सॉल्ट जो है, एंड नॉन मेटालिक सॉल्ट्स लाइक सल्फर सॉल्ट, इस तरह में इनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े एग्रीगेट बना देते हैं इकट्ठे होकर के, जो कॉलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आता है. तो दीज आर नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर, क्योंकि एक से ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है उस साइज का पार्टिकल बनाने में. ठीक है, सेकेंड है मैक्रो मॉलिक्यूलर. ये नाम से ही क्लियर है, मैक्रो है मींस ऑलरेडी पार्टिकल इज इन द साइज रेंज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल. तो इनके जो मिक्सचर होंगे दे विल बी कॉलॉइडल इन नेचर बिकॉज ऑलरेडी द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लार्जर. तो ये होते हैं जनरली ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. पॉलीमर्स जो वैसे ही बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, दीज ऑल आर बायोपॉलीमर्स. बायोपॉलीमर्स मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मिलने वाले ये पॉलीमर्स हैं, एंड दे आर लार्जर एंड देयर साइज इज इन द रेंज ऑफ कॉलॉइडल मिक्सचर्स. ठीक है, तो इनके जो कॉलॉइड्स होंगे दे ऑल आर इन दे आर ऑफ दिस टाइप, मैक्रोमॉलिक्यूलर. एंड थर्ड कैटेगरी है एसोसिएटेड.
ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें जनरली सोप सॉल्यूशंस जो कोलॉइड्स मिक्सचर होते हैं, इसमें क्या होता है, सोप को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो जनरली क्या होता है, अगर हम बहुत थोड़े अमाउंट में डाल रहे हैं तो वो एक नॉर्मल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, और वहां पर ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में एक्ट करते हैं, बिकॉज सोप्स, डिटर्जेंट्स, दे हैव सम आयनिक पार्ट एज वेल, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, बट व्हेन दे आर एडेड इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम एक्चुअली एक CMC शॉर्टर फॉर्म है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर हम इस कॉन्सेंट्रेशन से अबव कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूशन बना रहे हैं सोप या डिटर्जेंट का, तो वो एक तरह का कोलोइडल मिक्सचर बनाते हैं जिसमें वो मिसल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। मिसल्स, इफ यू रिमेंबर, एक तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है सोप का वो आउटर पेरिफेरल एरिया में होता है, और इनर जो सेंटर में आता है उस स्ट्रक्चर के, दैट इज जो आपकी हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है जिसको हम टेल कहते हैं ना सोप मॉलिक्यूल का, तो एक तरह का मिसल्स फॉर्मेशन होना जिसमें अप्रोक्सीमेटली 100 सोप मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, that aggregated structure which is known as micelle, and these kind of colloid actually multimolecular, और इसमें डिफरेंस क्या है कि मल्टीमोलिकुलर तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक जस्ट मिक्सचर है, उसमें वो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनाएंगे, मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते, सल्फर हुआ या सिल्वर है, गोल्ड है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सोप्स, डिटर्जेंट्स, दे आर अदरवाइज सॉल्युबल इन वाटर, और